Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. And today we have Vishal with us. We are going to discuss some great things regarding front-end developers, front-end engineering और कैसे चलते हैं front-end में सारी चीजें HTML, CSS, JavaScript, Angular, React कैसे start करना है, क्या करना है, वो वाली सारी चीजें बात करते हैं. A bit about Vishal. Last year, Vishal did 5 internships within a span of like 1 year. यहाँ पर लोगों की एक इंटर्नशिप नहीं लग रही 3 साल में. विशाल हैव डन 5 इंटर्नशिप्स और ये सारी चीजें ऑफ कैंपस. लाइक ही इज फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेटिव कॉलेज NSUT, आप सबने नाम सुना होगा. बट दीज ऑल दीज इंटर्नशिप्स आर ऑफ कैंपस. सो विल बी टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एज वेल कि यार डेवलपमेंट में लेने के बाद इंटर्नशिप्स कैसे मिल जाती हैं, कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर सर्च करना है, किस काइंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, ऑन ऑल दोस थिंग्स. देन विल मूव ऑनवर्ड्स टू नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज how to start front end development, how to become a front end engineer being in college. So let's start with a basic introduction of yours. Thank you so much Vishal आपके टाइम के लिए. स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ and then we'll move on towards your journey. So, hello everyone. I'm Vishal Rajput and I'm in a final year. अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है NSUT में एंड आई एम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड मैं ओपन सोर्स में भी काम करता हूँ. ठीक है. एंड अभी मैंने लास्ट अपने 1 साल के अंदर 5 इंटर्नशिप करी हैं, सारी की सारी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड सारी की सारी मैंने ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिली थी. एंड हर चीज को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करा, कैसे मेरे को इंटरव्यू प्रोसीजर इंटरव्यू इतने सारे मिले, कैसे मैं इतनी सारी इंटर्नशिप ले पाया, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. That's great विशाल. स्टार्ट करते हैं विशाल कि आपने 5 इंटर्नशिप जो बताया वो दैट इज अभी लोगों को लग रहा हो कि यार 5 इंटर्नशिप कैसे कर ली. NSUT में तो कॉलेज प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, कॉलेज कंपटीशन भी होता है और ये सारी की सारी चीजें ऑफ कैंपस. तो ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग एन इंटर्नशिप ऑफ कैंपस इट मींस यू हैव ग्रेट स्किल्स. लेट्स स्टार्ट विद हाउ डिड यू डेवलप योर स्किल्स. व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू हैव कि यार ठीक है फ्रंट एंड में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपने की हुई हैं, क्या बिल्ड किया हुआ है और फिर उन स्किल्स को कैसे अप्लाई किया आपने इंटर्नशिप्स लेने के लिए. सो बेसिकली मैंने सारी चीज जो भी सीखा है, कोई भी पेड कोर्सेज से नहीं, सारी चीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एट यूट्यूब से सीखा. आई वॉज अ पार्ट ऑफ गर्ल्स कोडेड वेयर इट इज सोसाइटी ऑफ महाराजा अग्रसेन. So where from where I start my learning front end development. First of all I start learning HTML, CSS and थोड़े छोटे छोटे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करा. So हाँ. after making like portfolio website or a restaurant website, I start learning JavaScript. So once True. I start, the most of the I learn from a YouTube. So there are channel like Code with Harry or JavaScript Mastery. I follow those channel for web development. And after learning HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap, sort of front end development, I'm not able to build projects. I stuck at a point where I have the theoretical knowledge, but I have a zero practical knowledge. I know how to build a small project, but I don't know how these real life projects will build. Okay, so for that reason, I make a project because I don't know about. I know everything like what is this JavaScript, how to use JavaScript, but how to build a project, how to use that JavaScript knowledge in project, that I don't know. So what I did is I make a awesome JavaScript project. So in what was that project? I make a open source project. In that project, my idea was it's not only my situation. There are so many students who learn HTML, CSS, JavaScript, and so many things from YouTube. But the thing is, YouTube will teach you theory or a 1 or 2 project, but how to implement this thing, it's up to you. How much you will practice, you will learn by learning and building projects. So what I did is I make a project, and my idea is to make small projects from vanilla JavaScript, no React, no any framework, nothing, just HTML, CSS, JavaScript. With the help of this, try to build something. Everyone know how to know to-do list, calculator. Let's build some big projects also. So Netflix clone, Instagram clone. So we are building so many projects. So right now, if you check out my awesome JavaScript projects, there are more than 240 contributors who build that project. So currently, we have more than 240 contributors, and the project has more than 1,000 stars. So that's how I start learning and building projects. So after doing this thing, what happened is I have a strong brand about because of my open source work. So many people recognize me. Let's talk about your
interview experiences, Vishal. So you have done great stuff in open source, right? You have like great contributors and all those things. गिटहब पे कंट्रीब्यूटर्स होना, स्टार्स होना, फॉलोवर्स होना, गिटहब का एक फॉलोवर लिंक्डइन के 10,000 फॉलोवर्स के बराबर होता है, ये समझ लो, ठीक है। तो या गिटहब पे इतनी वैल्यू, इट मीन यू आर अ ग्रेट डेवलपर। आपने चीजें बिल्ड करी हुई हैं, क्लोन प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं आपने, नॉर्मल टू डू लिस्ट ऐप वगैरह, पोर्टफोलियो, बेसिक स्टफ से स्टार्ट किया, देन यू मेड बिग प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया। इट मींस नाउ यू हैव एक्वायर्ड द ग्रेट अमाउंट ऑफ स्किल्स, ठीक है। जितनी स्किल्स एक फुल स्टैक डेवलपर को, मतलब एक फुल टाइम इंजीनियर को चाहिए होती हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर को जितनी फुल टाइम इंजीनियर को चाहिए होती हैं, वो आपके पास स्किल्स हैं। बट द ट्रिकी पार्ट है इज फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, कि यार ठीक है, मैं बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार भैया मेरे को ये आता है, ये आता है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, डेवलपमेंट में इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, बट आई एम स्टिल अनएबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट, विशाल, कि ठीक है आपके पास अच्छे अच्छे कॉलेज से हो आप, क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको वहां से मिली इंटर्नशिप के लिए, कितनी आपने ऑफ कैंपस निकाली, और कहाँ कहाँ से निकाली, किस किस तरीके से, उस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। So basically, I have lots of opportunities because of open source. So basically क्या हुआ, तो हमारे पास मेरे पास दो चीज थी, या तो मैं अपने हम्म। कॉलेज की इंटर्नशिप के लिए बैठता, बट मेरे हम्म। पास कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट होती है फ्रॉम जुलाई, हम्म। एंड मैं जनवरी के आसपास में, मेरे को मतलब डेवलपमेंट मेरी सारी आ गई थी, एंड मेरे पास 6 मंथ था, एंड मैंने हम्म। बीएसए पहली सारी अपनी फिनिश कर ली थी, तो मेरे पास 6 मंथ पूरे थे जिसमें मैं अपना टाइम या तो मैं कोई और स्किल सीख लेता या कुछ इंटर्नशिप करके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ले लेता। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल। rather than वेटिंग फॉर कि कॉलेज से इंटर्नशिप लेंगे, हम पहले से इंटर्नशिप ले लेते हैं। तो ठीक मैंने है। देखा देर आर लाइक सो मेनी वेबसाइट लाइक एंजलिस्ट एंड लिंक्डइन, फ्रॉम वेयर पीपल्स आर गेटिंग इंटर्नशिप। तो हम्म। मैंने देखा यहाँ पे तो हर हर कोई फॉर्म भर रहा है, ठीक है। अगर एक एप्लीकेशन आती है तो वहाँ पे 10,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो मेरा नंबर हाँ। कहीं नहीं आएगा, मेरा रिज्यूमे कैसे हाँ। शॉर्ट लिस्ट हो। तो आई हाँ। डिडेंट फिल एनी फॉर्म, मैंने कोई फॉर्म ही फिल नहीं करा। व्हाट आई एक्चुअली डू इज, बिकॉज सो मेनी पीपल ऑलरेडी नो मी, आई हैव शेयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स on my LinkedIn कि I have built so many projects, so people know and recognize me. So what I do is, I directly do a DM. Hey, but what I do basically is, before DM any founder, co-founder, recruiter, I just take a 2 or 5 minute and read about their company, what they are doing. हम्म। If I हम्म। like, हाँ यार ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, एंड इनका हम्म। प्रोडक्ट है ना, मेरे को इसमें काम करना है, ये प्रोडक्ट हाँ। मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो हाँ। अभी भी मेरे पास अभी कुछ कुछ कंपनीज हैं लाइक जिनमें मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ, बिकॉज वहाँ का मेरे को फ्रंट एंड जो उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है, ठीक हम्म। है। एंड लाइक देयर आर सम एमएनसी जो मेरे को मतलब कंपनी का ब्रांड बहुत बढ़िया है, बट उनमें ना मेरे को वो प्रोडक्ट पे काम, मेरे को जो प्रोडक्ट पे काम करने को बोलते हैं, वो मेरे को अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो बेसिकली हम्म। फॉर मी प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई किस कंपनी में काम कर रहे हो उससे ज्यादा वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट हम्म। आई डू इज, मैं किसी भी फाउंडर के पास जाता हूँ या फिर रिक्रूटर के हम्म। पास जाता हूँ, तो या टेक्निकल किसी भी सीटीओ के पास जाता हूँ, तो उनको मैं फर्स्ट थिंग ये बोलता हूँ कि आई लव योर प्रोडक्ट, एंड आपके हम्म। प्रोडक्ट को मैंने थोड़े बार पढ़ा है उसके बारे में, और आपके प्रोडक्ट में मेरे को ये चीज अच्छी लगी है, ठीक है। हम्म। एंड आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मेरे पास ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये मैंने ओपन हम्म। सोर्स में कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सो हम्म। व्हाट आई डू इज, मैंने उन्हें बता दिया कि आई ऑलरेडी नो, मैं रैंडमली सबको मैसेज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हाँ। कंपनी में अगर मैसेज कर रहा हूँ तो आई नो अबाउट योर प्रोडक्ट ऑलरेडी, ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ। कंपनी में काम करना चाहता हूँ। सेकंड थिंग इज कि मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं इस पे काम करने के बाद मेरे पे ये स्किल्स हैं, ओके। हाँ। एंड थर्ड थिंग इज कि मैं उनको खुद बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। समटाइम्स मैं हम्म। आपको बता देता हूँ कि आपकी कंपनी, मैं ऑलरेडी मतलब जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां पे मैंने इतने सारा वो काम कर रखा है, अगर मैंने ओपन सोर्स में कर रखा है तो मैंने, मेरे को पहले से ही पता है कि गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है, बिकॉज जब तुम अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब भी जा रहे हो तो तुम्हें इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कि लाइक कि यार ये गिट कैसे काम कर रहा है, कोड बेस हम्म। कैसे सेटअप करें। बट अगर तुमने ओपन सोर्स में काम कर रखा है ना, तो लाइक मैंने एक कंपनी में काम करने से पहले, फर्स्ट इंटर्नशिप से पहले 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा था, तो मुझे हम्म। पता है कि कैसे कोड बेस को सेटअप करना है, लोकल सिस्टम में कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज हम ओपन सोर्स में पहले ही सीख लेते हैं अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप से पहले ही। तो बिल्कुल। मैंने कहा कि मेरे को ये सब चीज बहुत पहले से आती है, तो इससे क्या फायदा होता है जब तुम ओपन सोर्स कर लेते हो इतना सारा, तो इंटर्नशिप मिलने के बाद भी तुम्हारा जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत फास्ट होता है, एज कम्पेयर टू जिसने हम्म। कभी ओपन सोर्स नहीं करा। तुम अगर जाते हो इंटर्नशिप में तो तुम फार बेटर करते हो, बिकॉज ऑफ योर डेवलपमेंट स्किल्स और तुम्हारी लर्निंग स्किल्स, क्योंकि ओपन सोर्स में तुम कभी इस प्रोजेक्ट पे काम करो उसमें कोई डिफरेंट टेक्स्ट यूज हो रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट पे किसी और पे यूज हो रहा है। तो ओपन सोर्स में हाँ। क्या करते हो तुम, हर बार वो नई नई चीज सीखते हो कि यार आज मेरे को ये इशू सॉल्व करना है, सो लेट्स लर्न, इसके लिए मेरे को ये सीखना पड़ेगा, जल्दी से तुम एक दो हाँ। दिन में सीख के वो सॉल्व कर देते हो।
सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से तुम अच्छा कर पाते हो इंटर्नशिप में एज कम्पेयर टू समवन हु डोंट नो ओपन सोर्स। दैट्स रियली नाइस। काफी टाइम बाद ओपन सोर्स के ऊपर इस तरीके से बातें सुनने को मिली हैं। इट वाज 2019 व्हेन आई वाज क्वाइट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, और मैं लगा पड़ा था कुछ भी प्रोजेक्ट्स देखने में एंड्रॉइड से रिलेटेड। इट वाज कि मैं कभी कॉटलिन का देख रहा हूँ, कभी मैं फ्लटर का देख रहा हूँ, कभी जावा। मुझे आता था कि जावा में ऐप बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख सारी चीजें रहा था। अच्छा, ये रिएक्ट नेटिव है, कोई नहीं, सीख के कर लेंगे। ये इशू इसका है, ये सीख के कर लेंगे। मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कॉटलिन का एक कोड नहीं लिखा था और मैंने देखा अच्छा ये इशू है और ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। मैंने थोड़ा सा सीखा और वो कोड किया और वो पीआर सबमिट हो गई। दैट्स हाउ, लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स, राइट? You get to work on different projects, multiple projects, and you get recognition for all those things कि यार जब हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो हम एक वो 10,000 की भीड़ में से अलग छट जाते हैं पहले से ही, है ना? जो 10,000 लोग एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, दैट थिंग लाइक बेसिकली सेपरेट्स यू। आपको अल्टीमेटली इंजीनियरिंग में जब भी आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे फुल टाइम हो, कुछ भी हो, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। इट कैन You बी have to show एनीथिंग। some unique thing about you. Yeah, yes. Yeah. It can be anything. You can be the rank one Kickstart coder. You can be the 7-star code chef coder. ऐसा कुछ भी जो बहुत कम लोगों के पास है या किसी के पास भी नहीं है. If you're able to get a set of those skills, companies will be coming back to you, right? And that's Yeah. I have seen a lot of things regarding it. Like I used to have a great profile on GitHub. Companies, small startups, big startups, different companies used to came up to me कि यार ठीक है, हमने कंट्रीब्यूशन वगैरह देखे, हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या टेक पे काम कर रहे हो, हम आपको सिखा देंगे, आगे ज्वाइन कर दो। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग Amazon, देवर कंपनीज लाइक तुम जितने Amazon दे रहे हैं, अरे ज्यादा देंगे हम तुम्हें, आओ तुम यहाँ पर आओ। दैट्स हाउ थिंग्स वर लाइक यार हमारे सीटीओ से डिस्कशन Yeah. करो, बिकॉज यू हैव डन ग्रेट स्टफ एंड आवर पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज। दैट्स द सिनेरियो, दैट्स द थिंग्स दैट यू आर लाइक हैंडलिंग एट दिस पॉइंट कि यार ठीक है, काम वाम किया, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, दैट्स व्हाई यू गॉट द रिकॉग्निशन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेट कर लेंगे उसके बाद जादू हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं चल रही हैं। योर वर्क needs to be published everywhere, then people is going to see you and then you'll get opportunities. Okay, so we are done with that part where we know what we have to learn. The learning curve is done, the opportunity finding is done. Let's talk about the interviews. How were the interviews scheduled and what kind of interviews were they? उसमें आपसे DSA का कितना पूछा गया? How much was related to front end development? और कभी ऐसा हुआ था कि आप जैसे मोस्टली काम कर रहे हो रिएक्ट पे और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन एंगुलर पे और वो कुछ अलग टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस काइंड ऑफ चीजें लेट्स talk about your interview experiences, not specific to one company. Let's talk about in general, how did your 5 interview experiences went well? So basically in most of startups they ask about development only. मेरे जितने भी राउंड हुए या तो वो मशीन कोडिंग राउंड होते थे। बेसिकली उसमें क्या Hmm. होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, लेट्स से आपको एक एपीआई दे दी एंड आपको बोला कि आप इस एपीआई पे गेट कॉल गेट करो या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट करो एंड Hmm. आपको एक डेटा लेना है, ठीक है? तो Hmm. दिस आर समथिंग, या फिर आपको बोल दिया कि आपको ये एक स्मॉल ऐप पे एक फीचर बनाना है, देयर आर वन ऐप, उसका आपको एक फीचर बनाना है। या फिर Hmm. आपको बोल दिया एक सिंपल सी थोड़े से डीएसए रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते थे इन द फाइनल राउंड। लेट्स से फर्स्ट Hmm. राउंड मशीन कोडिंग राउंड हो गया, सेकंड राउंड Hmm. तुम्हारा मैनेजर के साथ हो गया। जस्ट Hmm. मैनेजर आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है जस्ट टू चेक कि यू हैव डीएसए नॉलेज और नॉट। बट Hmm. उन्होंने खुद बोल रखा था कि अगर डीएसए नॉलेज नहीं भी है तब भी लाइक दिस जस्ट टू चेक कि हाउ मच डीएसए यू नो। दे आस्क मी अबाउट ट्राई एंड बाइनरी ट्री एंड आई गिव ऑल द आंसर, बट दे से कि Hmm. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू शुड नो डीएसए, but it is very good that you know DSA as well. So अगर किसी Nice. भी like startups में जाते हो तो the second thing is sometime what will happen, they will not take in machine coding down directly. What they will do, Hmm. they will say this is the problem statement, do solve this in just next 3 days. So what is the main benefit of this? बेसिकली क्या होगा कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो अगले 3 दिन के लिए, और आपने उस Hmm. 3 दिन पे कैसे आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, आपने कैसे वो सोल्व करा, कितना सोल्व कर पाए। इट मे बी पॉसिबल आप Hmm. 100% सोल्व नहीं कर पाए, बट आपको रिपोर्ट देनी होगी कि सर दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई यू गिव, आई these are the difficulties that I faced, and
इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करा और इस तरीके से मैं इस इतना रिजल्ट ला पाया हूँ। आई एम नॉट एबल टू टेक 100%, और वो आपसे 100% एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बिकॉज समटाइम्स यू हाँ विल सी कि यार उन्होंने वो असाइनमेंट दिया जो मेरे बस की बात ही नहीं थी, लाइक मेरे पे हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी हाँ। मेरे को गूगल पे मिला, कुछ भी नहीं मिला। बट एट दैट टाइम तुम्हें क्या करना है, तुमसे जितना हो रहा है 10%, 20%, 30, 50, जितना परसेंट तुम कर पा रहे हो खुद से उतना करो। हम्म और करने के बाद लाइक गूगल से तुम सर्च कर सकते हो कि हाउ टू डू, मतलब कोई भी एरर आ रही है देखो कैसे करना है। ठीक है, अगर हम्म कोई भी फीचर, उन्होंने एक बड़ा सा टास्क दे रखा है, लेट्स से जस्ट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, मान लो एक नोशन एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा कि नोशन प्लेटफॉर्म पे उनका सारा डेटा है कंपनी का, ठीक है, सारे टेबल सारे डेटाबेस उधर है, बट अब वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। ठीक है, हम्म अब तुम्हें क्या करना है, नोशन का दे कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, कि पहले तो हो सकता है कि अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो सारा डेटा दोबारा क्रिएट करें, सेकंड कि नोशन से उधर क्या करें, ऑटोमेट कर दें। तो अब हम्म तुम्हें बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे? हम्म तो तुम अगर ध्यान से थोड़ा सा गूगल रिसर्च करोगे, तुम देखोगे यार कि देर आर सो मेनी एक्सटेंशन जिससे हम पैराग्राफ डेटा, ये जो टेबल्स होते हैं उनको कॉपी कर सकते हैं। अब उधर पेस्ट हम्म कैसे करना है, ये कैसे करना है, जस्ट इंप्लीमेंट करो और 1 से 2 दिन के अंदर ये तुम बना सकते हो, सिंपल सी ऐप। ओके, तो लाइक ये सब चीज अगर तुम कर लेते हो तो इसके दो फायदे हैं, एक तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया, बहुत सारी लर्निंग हुई, सेकंड ये प्रोजेक्ट तुम रिज्यूमे में डाल सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होते हैं, बिकॉज ये हाँ इंडस्ट्री में काम हो रहे होते हैं। तो हाँ इसलिए मैं बिल्कुल। सजेस्ट करता हूँ स्टार्टअप में अप्लाई करते रहो, तुम्हें जरूरत भी नहीं है ना तब भी अप्लाई करो, क्योंकि जब अप्लाई हम्म करोगे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, वो बेटर है, पर्सनल प्रोजेक्ट से बेटर प्रोजेक्ट्स बनेंगे और वो तुम्हारे रिज्यूमे में डाल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइक हायरिंग ऑफ स्टार्टअप्स कि यार यहाँ पर क्या है, आपकी स्किल्स के ऊपर हायर किया जा रहा है, एंड द हायरिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन how well a developer can do. Like, ठीक है, let me take a very good example. मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनीज में से एक कंपनी है जिसका नाम है गोजेक। इंडोनेशियन कंपनी है, इंडिया में 2 जगह पर ऑफिस है, गुरुग्राम में, बैंगलोर में। एंड दे हायर ऑन द बेसिस ऑफ योर डेवलपमेंट स्किल्स कंप्लीटली। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इंटरव्यूज होंगे, जो कुछ भी प्रोसेस होगी, ऑल एवरीथिंग इज गोइंग टू बेस्ड ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स. And the best thing that they do is they send you like whenever you apply, they'll get on a call with you, they'll discuss कि हाँ आप काम करना चाहते हो, अच्छा ठीक है, हम आप बता दो टाइम जब आपको टास्क भेजते हैं, then they'll send a task. That task is very very well defined, मतलब इतना जबरदस्त टास्क होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने को दी उन्होंने मुझे। एंड लाइक यार, अगर जिस बंदे ने 1 हफ्ते एंड्रॉइड डेवलपमेंट की है, वो भी इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, और जो 4 साल से एंड्रॉइड डेवलपर रह चुका है, सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर है, लीड है कहीं पर, वो भी इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जो जजिंग क्राइटेरिया थे वो बहुत जबरदस्त थे, मतलब उन्होंने ऐसा टास्क दिया कि यार कंप्लीट सब कर ही लेंगे, लेकिन किस तरीके से कर रहे हो, क्या लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा एडवांस कर रहे हो, कितने ज्यादा फीचर्स डाल रहे हो, और वो क्राइटेरिया उन्होंने उस पैराग्राफ के अंदर बहुत प्यारे तरीके से मेंशन किया हुआ था। एंड व्हेन द इंटरव्यूज केम इन, तो फर्स्ट टाइम तो जब मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तब हुआ नहीं, नेक्स्ट टाइम आई अप्लाइड आफ्टर 3 मंथ्स, गॉट अ चांस अगेन, अलग असाइनमेंट मिला, आई वाज एबल टू क्लियर द असाइनमेंट दिस टाइम। फिर मैं इंटरव्यूज में बैठा, और इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूज वर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट स्किल। हम दोनों, मैं और जो इंजीनियर थे, वो साथ में बैठते हैं, ऐसा इंटरव्यूअर की तरह नहीं बैठते, हम कलीग्स की तरह बैठते हैं। एंड दे आस्क यार अच्छा आपने ये चीज बनाई है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, और नया फीचर डालते हैं, चलो ये फीचर डालते हैं साथ में बैठ के। और इंटरव्यू के बीच में ही टोल्ड मी टू सर्च ऑन गूगल, मैंने गूगल किया, अच्छा ये चीज कर सकते हैं, देन वी यूज दैट लाइब्रेरी एंड कंप्लीटेड दैट फीचर विद इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं गया, नेक्स्ट इंटरव्यू वाज लाइक कि अच्छा आपने ये फीचर डाला है, तो यार टेस्ट तो किया नहीं है, चलो यूनिट टेस्ट लिखते हैं इसके ऊपर। सो बेसिकली कंप्लीट इंटरव्यू, कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस वो बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट, माय स्किल्स एंड माय डेवलपमेंट स्किल्स। सो दैट वाज हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड this is the beauty of startups hiring, right? So yeah, it was great to see this thing. मुझे लगा था ये चीज कॉमिट होती जा रही है, कम होती जा रही है, but good to see it here. Okay, Vishal. So we are done with a lot of questions. We have covered a lot of things. Let's talk about what to do, how to start if someone wants to get into front-end engineering. अगर कोई पर्सन, कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनफैक्ट कोई स्कूल स्टूडेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, व्हाट शुड बी दे डूइंग, किस तरीके से स्टार्ट करना है, और किस किस चीज के ऊपर ज्यादा तरीके से उन्हें ध्यान देना चाहिए? सो बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट या किसी भी डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करो ना, तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग कर रहे हो या फिर सिर्फ थ्योरी बेस्ड लर्निंग कर रहे हो। द रीजन बिहाइंड दैट इज
जो आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप या जॉब के टाइम पे आपको अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाने में एंड अच्छे से उस इंटर्नशिप को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। एंड जो वो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगी इजीली आपको वो डीबग करने में एंड जो आपके इंटरव्यू है वो क्लियर करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने भी अपना एक पूरा का पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स बनाया, जिसके अंदर मैंने अपनी हर एक चीज टॉपिक वाइज कवर करवाई है एंड हर एक चीज पे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप सेट टाइम आउट देखोगे, सेट इंटरवल देखोगे, फैच एपीआई, हर एक टॉपिक पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए एंड उस पर प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। सो उस कोर्स में हमने कैसा बनाया, बेसिकली अब हर एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, उसके साथ साथ एट द एंड यू विल सी लाइक अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मान लो मैंने गूगल कीप का एक क्लोन बनाया, उसके अंदर मैं खुद से 3 से 4 फीचर इंप्लीमेंट करके मैं खुद बताऊंगा कि आपको अगली 4 या 5 फीचर कैसे इंप्लीमेंट करने हैं एंड मैं तुम्हें उसका पूरा वे बताऊंगा कि आपको ये इस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं। आपको लाइक अगर आपको मान लो कोई डिलीट फीचर बनाना है या फिर कोई आपको फीचर बनाना है, वो आपको मैंने पूरा बता रखा है कि आपको इस तरीके से बनाना है। यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई हैव सेड। सो आपको वो सारी चीज इंप्लीमेंट करनी है। इससे क्या होगा, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, आपको प्रोजेक्ट्स, आपके पास प्रोजेक्ट्स बन गए जो मैंने आपको कोर्स में दिखाए, प्लस उस प्रोजेक्ट में आपने खुद काम करा, आपने खुद अपने आप से 1 या 2 फीचर अपने आप से करे। जैसे अभी मुकुल ने कहा कि इंटरव्यूअर ने कहा कि यार ये तो प्रोजेक्ट सही है, क्या हम इसमें ये फीचर बना सकते हैं, और इंटरव्यूअर ने खुद एक उसके अंदर एक फीचर इंप्लीमेंट करा। द सिमिलर थिंग आई हैव डन इन माई कोर्स। सो या दैट्स ऑल अबाउट लाइक कि कैसे तुम्हें सीखना चाहिए। Cool, got it, understood. So ultimately, revising whatever you said is basically कि यार अपन को थ्योरी तो पढ़नी है, प्रोजेक्ट्स वाले साइड पे भी लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं है कि यार थ्योरी बेस्ड लर्निंग कर ली या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर ली। अल्टीमेटली वी हैव टू बी बैलेंस्ड ऑन बोथ दी साइड्स, कि आपकी थ्योरी भी आनी चाहिए अच्छे तरीके से, किस तरीके से हम बना रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर। हैंड्स ऑन लर्निंग भी और थ्योरी भी, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस। Okay, got it. Anything else, Vishal, from your side? Let's talk about the last question from my side, which is like any advice that you would give to your juniors or freshmen or sophomores. किसी भी टाइप की एडवाइस जो आप अपने लाइक जूनियर्स को या फिर उन्हें देना चाहते हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर। तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बिल्ड प्रोजेक्ट, start learning, and whatever you are learning, whatever you are building, showcase on public. Let's say you have learned HTML. Okay, the basic thing, the first thing you have learned is HTML. So once you learn the HTML, so in LinkedIn that today I have learned these things, and with the help of this I build this product. Okay, whatever you are building, deploy and show the link कि I have built this product। अगर मान लो आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है, ओके, सो अगर आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालते हो कि ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ओके, इससे बेटर अगर आप उस वेबसाइट को एक डिप्लॉय करो, ठीक है, गिटहब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिप्लॉय कर सकते हो, और आप वो लिंक लोगों को सेंड करो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, इस लिंक को चेक करके आप बताओ। तो उससे क्या होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है कि लोगों के, आपको अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है तो आप अमेजोन की वो वीडियो नहीं देखते, आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाके देखते हो कि वो कैसे बन रही है। ओके, तो सिमिलरली आप लोगों को शेयर करो, जितना भी आप सीख रहे हो लर्निंग, आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर करो, क्योंकि एट द एंड जब आप वो शेयर करोगे तो जितने सारे वो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई एक लोग आपको इन फ्यूचर वो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या तो फ्रीलांस का प्रोजेक्ट दे सकता है, या अपने इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकता है अगर आप उन्हें शो करोगे। सो लर्निंग इज वन थिंग एंड शोइंग योर स्किल्स इज सेकंड मैंडेटरी थिंग। I completely agree with all these things. Yeah, there are multiple ways to get a job. There are multiple ways to become an engineer. There are multiple profiles in engineering. You just have to stay focused on one thing. That's gonna help you a lot. If you have time, you can discover all these paths. But after that, stay focused on one thing. यार आपको front end developer बनना है, then just go check out those things. Learn from those particular stuff. एक एक चीज step by step करते चलो and all those things. Also, Vishal have his YouTube channel. You can check that out as well. I'll share the link in description. That's a great place to learn. वो regularly videos वहाँ पर upload करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। But ultimately, motivation is your going to be the main thing. आपको करना है, अच्छे से करना पड़ेगा, तभी ही आगे जाकर चीजें बढ़िया होने वाली हैं। ठीक है, जैसे विशाल ने क्या किया, ultimately was able to achieve a lot of things, a lot of great things, but वो सारी चीजें करने से पहले, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से पहले ही हैड टू बिल्ड अ बेसिक फाउंडेशन कि यार अगर फ्रंट एंड डेवलपर इंजीनियरिंग में जाना है तो ये चीजें आनी चाहिए। ही वाज एबल टू डू दैट, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, ओपन सोर्स किया, तब अपॉर्चुनिटीज मिली एंड देन ही वाज एबल टू क्रैक थिंग्स, राइट।
आपको ये नहीं देखना कि आगे क्या है, कंपनीज आ रही है नहीं आ रही है, क्या चीज चलने वाली है कैसे, बट प्रिपरेशन वाला पार्ट अपना स्ट्रांग रखना है, फंडामेंटल स्ट्रांग रखना है, फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है, चीजें मस्त चलेंगी. Talking about fundamentals, yeah, if you don't have great fundamentals, if you think you're lagging a lot, I'm gonna highly recommend Pay After Placement of Newton School. They have a program, and in that program you're gonna learn a lot of things in 6 months. आपको पूरा जबरदस्त इंजीनियर बना देंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है. और उसके बाद में आपको मॉक इंटरव्यूज के चांसेस मिलेंगे अनलिमिटेड, जितने आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं आप उसके लिए बाद में इंटरव्यूज में बैठेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आके आपके इंटरव्यूज ले रहे होंगे, उसके बाद में आप इंप्रूव करेंगे, यू विल बी सिटिंग इन रियल कंपनीज एंड गेटिंग ग्रेट जॉब. सो दैट इज what Newton School offers. So you don't have to pay anything until you are very well prepared. आपकी जब तक 5 लाख से ऊपर की जॉब नहीं लग जाती, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है. और जब लग जाती है 5 लाख, तो लाइक इट्स द बेस, ठीक है. वो तो मिनिमम आपकी वो बताते हैं कि यार मिनिमम जॉब इतनी ही होनी चाहिए. लोगों के अच्छे अच्छे 20, 30, 35 वाले सीटीसी लगते हुए देखे हैं, तो आपके सीटीसी आराम से बढ़ने वाले हैं. इफ यू हैवंट चेक्ड आउट न्यूटन स्कूल येट, गो चेक देम आउट राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम अस. इट वाज a great experience talking with you, Vishal. It was a really nice thing कि यार आप tier 1 वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स, tier 2 वाले कॉलेज के स्टूडेंट, they are also doing efforts to get opportunities off campus. They're cracking stuff over there as well. So it doesn't matter the tier, it matters like कि आपका सर्कल कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, and what is the amount of hard work that you are putting in. So thank you again, Vishal. Thank you so much for coming on channel. And मिलते हैं किसी और वीडियो में. Thank you. Have a nice day. Bye bye.